So let's start with the prerequisite. Okay, the prerequisite information, or the information that you need to understand complex number better. Square root of a complex number. So let's first talk about square root of a complex number, and you will be able to know whether you, whatever you know about square root, that everything is correct or not. You will get to know everything about that. Okay, let's start with square root of a number. Square root of a number. Square root of a number. Okay, so first point is every number has two square roots. Two square roots. Every number has two square roots. For instance, 2 and minus 2 are square roots of what? Square roots of what? 4, right? Root 2 Yes, sir. and minus root 2 are square roots of what? 2, right? Okay. Now you say that if every number has two square roots, then sir, but we know that 0 has one square root, that is 0, right? Well, can I say it like this, that 0 has two square roots and both of them are equal to 0, and both of them are equal to 0. Well, I shall say that 0 has two square roots and both of them are equal to 0. Okay, one of them is root over of 0, another is minus root over of 0, and both are equal to what? 0, remember. So 0 has two square roots and they are equal to each other, and they are what? They are equal to 0, remember. So the main thing is, given any number, whatever number I give you, it will have two square roots, or I can say always two numbers have the same square. Okay, two numbers always have the same square. Okay, now So we'll write this. no, don't write it, but try to understand only. Then the next point comes. Let's talk about this symbol. This symbol is used to find the non-negative square root of a number, also called principal square root of the number. For example, this symbol, which is called square root symbol, square root of 4, is not equal to minus 2. Remember, it is not equal to minus 2, rather it is equal to 2. And why is that? Because this symbol is used to find the non-negative square root of 4. This symbol is used to find the non-negative square root of 4. Well, 4 has two square roots, obviously. One of them is minus 2, the other one is 2. But between these two square roots of 4, which one is non-negative? 2. So this symbol is used to find the non-negative square root of 4. Okay. But if I put a minus sign in front of that symbol, then I will get the answer as minus 2. Because answer to this is 2, then there is a minus in front of it, so it becomes minus 2. That is why whenever we say that there is a number x whose square is equal to 4, we say that the number x is equal to two values, plus or minus root over of 4. That is to say, one of them is only this, the other one is minus root over of 4. This one is 2 and this one is minus 2. ये सिंबल का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा. दिस सिंबल ऑलवेज गिव यू नॉन नेगेटिव स्क्वायर. यू गॉट माई पॉइंट? ओके, everybody got it? Square root symbol? Yes, sir. Oh. Yes, sir. Yes, sir. Now a very important thing which will blow your mind, कि आपको लगेगा कि अब तक स्क्वायर रूट के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं था, टीचर ने कुछ स्कूल में पढ़ाया नहीं था. और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि उस टाइम में आपका
मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका पोटेंशियल उतना नहीं था कि आप समझ ना पाओ, लेकिन अभी मेरे हिसाब से क्लास 3 का बच्चे का भी प्री कैलकुलस समझने के लिए भी उसका कैपेसिटी होता है। मेरा तो होता था, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों का कैपेसिटी आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है। और इसीलिए इंडिया में अभी एजुकेशनल ये को स्टैंडर्ड को चेंज किया जा रहा है। आपको पता है सिलेबस वगैरह वगैरह आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए टीचर ये सब डिस्कस नहीं किए थे। फिलहाल हम तो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर? वेल, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. Let's find out what is the square root of x square. Well, let's talk about it. Well, I know that there are two numbers, one is x, another is minus x. Square of x is also equal to x square. Square of minus x is also equal to x square. Is also equal to x square. Then root over of x square is what? Is it x or is it minus x? Which one is the correct answer? Okay, let's try to find out. Let's try to find out. Suppose मैं आपको दिया हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ। अब बेटे देखो, कहने का ये बात है कि एक्स स्क्वायर का दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक होता है एक्स, दूसरा क्या होता है माइनस एक्स। दोनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। हर नंबर का दो स्क्वायर रूट होते हैं। एक्स स्क्वायर का भी दो स्क्वायर रूट है, एक है एक्स, दूसरा है माइनस एक्स। लेकिन इसका आंसर अब इन दोनों में से कौन होगा? बात यह है कि बेटे ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज यूज फॉर फाइंडिंग द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ओके, तो बात यह है कि इफ अगर मेरा x खुद एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि x एक वेरिएबल है, x एक अननोन है, x कोई भी नंबर हो सकता है। अगर x एक पॉजिटिव नंबर है, अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो माइनस एक्स क्या हो जाता है? नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव नंबर जैसे 5 ले जाते हैं, x की जगह 5 ले जाते हैं, तो माइनस 5 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और इस सिचुएशन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम क्या लिखेंगे? इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे? इन दोनों, क्योंकि ये दोनों तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर है। तो इसका आंसर अभी इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे? जो पॉजिटिव नंबर हुआ, क्योंकि ये सिंबल कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। ये क्या देगा? एक्स स्क्वायर का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट देगा। अभी एक्स स्क्वायर का ये दो स्क्वायर रूट में से एक्स माइनस एक्स में से कौन नॉन नेगेटिव है? एक्स। तो ये आंसर अभी एक्स देगा। लेकिन जरा इमेजिन करो, अगर एक्स आपका खुद नेगेटिव होता तो एक्स के जगह अगर -5 डाल दे तो एक्स अगर नेगेटिव है तो -6 पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव नंबर में अगर एक माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा? देखो बेटे, वही बात हुआ, दो नंबर है जिनका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, और वो दो नंबर क्या है? एक है एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर ये जो सिंबल हम यूज किए हैं, ये सिंबल का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नॉन नेगेटिव आता है। तो इसका आंसर इन दोनों में से कौन सा होगा? देखो बेटे, ये नेगेटिव है तो ये तो नहीं दे सकता आंसर, ये तो नहीं दे सकता, यही देगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, राइट? -x. You got it? तो Yes, sir. here we Yes, have sir. here we have a problem. Here we have a problem that here we have a problem that square root of x square is equal to x when x is greater than 0 and minus x when x is less than 0. अभी देखिए यहाँ पर you see, जब x पॉजिटिव नंबर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, जब x नेगेटिव नंबर है x स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स। देख लिए, राइट? अब आप Yes, बोलोगे sir. सर, अब बोलोगे सर अगर x इक्वल टू 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो आप इसको माइनस एक्स या फिर प्लस एक्स जो भी समझो, क्योंकि 0 के अगर प्लस लगाओ माइनस लगाओ जो भी लगाओ द सेम आंसर यू विल गेट। गॉट माई पॉइंट? यू गॉट इट? Yes, प्लस sir. 0 या फिर माइनस Yes, sir. 0 में कुछ फर्क नहीं पड़ता। Yes, sir. ओके, तो फिर हम ये देख रहे हैं, हम ये एक चीज देख रहे हैं कि जिसका स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, एक्स का स्क्वायर है, राइट? एक्स का स्क्वायर,
अगर ये x एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका आंसर वही x आ रहा है, अगर ये x नेगेटिव नंबर है तो इसका आंसर -x आ रहा है। मतलब किसी भी तरह x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे रहा है, अगर माइनस है तो, अगर x नेगेटिव है तो उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर दे रहा है। मतलब किसी भी तरह इसका आंसर पॉजिटिव आना है, राइट। तो बस मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि √(x²) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, काम खत्म। अगर x पॉजिटिव होगा तो उसका मॉड वही x रहेगा, राइट। x अगर पॉजिटिव होगा, अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉड x क्या होता है, वही x होता है, राइट, वही x होता है, राइट। कोई एक पॉजिटिव नंबर का मॉड ले लो, वही नंबर मिलेगा। 5 का मॉड वही 5, 3 का मॉड वही 3। तो x अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉड ऑफ x वही x आता है, राइट। हेलो, गॉट इट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और x अगर एक नेगेटिव नंबर है, मतलब जिसका मॉड निकाल रहे हो, अगर एक नेगेटिव नंबर है तो जब मॉड आप करते हो तो क्या करते हो, उस नंबर में एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट। उस नंबर में माइनस मल्टीप्लाई कर Yes, देते हो। सपोज -5 का मॉड निकालते हो, क्या आता है, 5 आता है। 5. कैसे आता है, -5 में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट, तो फिर 5 हो जाता है। यू गॉट इट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो बात ये है कि x² का जो ये सिंबल दे रखा है स्क्वायर रूट, ये हमें नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट देगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ x इसका आंसर लिखेंगे, ताकि अगर x खुद एक पॉजिटिव नंबर हो तो ये पॉजिटिव होके रह जाएगा, अगर एक x नेगेटिव नंबर हो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव का मॉड होके पॉजिटिव हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? गॉट इट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, √(3²), ये 3 करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बिकॉज 3 इज पॉजिटिव, 3 आंसर है, ये तो सही बात है। 9 का स्क्वायर रूट 3 आना है, क्योंकि देखो 9 का 2 स्क्वायर रूट है, एक है 3, दूसरा है -3, लेकिन ये सिंबल का आंसर तो कभी -3 आएगा ना, तो 3 लिखे हम, करेक्ट है, राइट। इसका अगर निकाल दें तो क्या इसका आंसर -3 होगा? नहीं होगा, राइट। नो सर। No, sir. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये सिंबल किस लिए यूज किया जाता है, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट लेने के लिए, लेकिन आप तो नेगेटिव। Yes, इसका sir. आंसर क्या होगा, -3 का मॉड कर दो, 3 हो जाएगा। 3. अरे बेटा, करेक्ट बात है कि नहीं? यस सर। देखो, हाँ sir, yes sir. ओके, जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो वो क्या है, -3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। और -3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। अभी 9 का तो 2 स्क्वायर रूट है, एक है -3, दूसरा है +3, दोनों का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन इसका आंसर उन दोनों में से कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा, राइट। 3 पॉजिटिव है three. तो 3 होगा, इसीलिए दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। यू गॉट इट? हेलो, यू गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. तो दिस इज द प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग स्क्वायर रूट, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना बहुत कुछ काम नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में इसको यूज कर सको। क्योंकि जब आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब इवनिंग क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे, और टफ क्वेश्चन के टाइम में थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो उधर हम ये चीज़ यूज करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। ओके। अगर समझ में आया तो ये बताओ बेटे, एवरीबॉडी इज पेइंग अटेंशन? ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके sir. ओके। स्क्वायर रूट ऑफ sin square theta is what? Well, let's find out. ये जो नंबर है sin square theta, ये जो नंबर है sin square theta, it has 2 square roots, right? Has 2 square roots. What are they? Sin theta and minus sin theta. -sin थीटा। दोनों का स्क्वायर करने से आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलता है। साइन थीटा का स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसका आंसर ये दोनों में से, इसका आंसर ये दोनों में से कौन होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वेल, बात ये है कि इसका आंसर इन दोनों में से कौन होगा, इन दोनों में से जो नॉन नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव होगा वो इसका आंसर नहीं होगा, जो नेगेटिव नहीं होगा वो इसका आंसर होगा। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटे देखो, थीटा अगर आपका फर्स्ट
या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है तो उस सिचुएशन में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, राइट? साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, यू गॉट इट राइट? साइन थीटा Yes. पॉजिटिव, Yeah. फिर माइनस साइन थीटा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। अगर साइन थीटा एक पॉजिटिव नंबर है तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर। वेल, अगर थीटा बाकी दोनों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 3 या फिर क्वाड्रेंट 4, तो वहाँ पर तो साइन नेगेटिव आता है एस्टिस रूल के हिसाब से। और अगर साइन थीटा खुद एक नेगेटिव नंबर है एंड उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? राइट? Yes, sir. ओके, तो बात ये है कि इसका आंसर अब क्या लिखें? क्या इसका आंसर साइन थीटा लिखे या हाँ, फिर तो माइनस sin साइन थीटा लिखे? क्या इसका आंसर साइन थीटा लिखे या फिर माइनस साइन थीटा लिखे? देखो बात ये है कि बेटे साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। साइन थीटा एक पॉजिटिव नंबर होगा जब थीटा फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा। अगर थीटा बाकी दोनों क्वाड्रेंट में से किसी में है तो साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर आप साइन थीटा लिखते हो दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि साइन थीटा हमेशा थोड़ी ना पॉजिटिव रहता है। थीटा के क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव आता है। माइनस साइन थीटा भी लिखे वो भी सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर आपका थीटा फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो साइन थीटा नेगेटिव, माइनस साइन थीटा नेगेटिव। लेकिन अगर थीटा थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है तो माइनस साइन थीटा पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस साइन थीटा भी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, राइट? तो व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर मॉड ऑफ Mod of साइन। sin. साइन थीटा का वैल्यू जो भी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका मॉड कर दो, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव साइन घट चला जाएगा, Yes, sir. राइट? तो साइन थीटा हुआ। बस, Yes. Yes. यू गॉट माई पॉइंट? यही है कॉन्सेप्ट। लेकिन बाद में हम इसको जब एंट्रेंस क्लास में सर पढ़ाएंगे, एंट्रेंस की चीज़ें वहाँ पर डिटेल Yes. में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये गया चीज़ें, ठीक है? अच्छा, लेकिन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, इफ इट इज मेंशनड दैट x इज ए पॉजिटिव नंबर, अगर मेंशन है कि x एक पॉजिटिव नंबर है, अगर हमें पता है कि x इज ए पॉजिटिव नंबर, वी नो इट, देन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू हम x लिख सकते हैं, नो हार्म इन इट, क्योंकि हमें पता है x इज ए पॉजिटिव नंबर एंड x का स्क्वायर होता है। यू गॉट माई पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Similarly, if it is mentioned that x is a negative number in itself, तो x स्क्वायर का रूट ओवर हम माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, Yes, sir. और माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है। तो बात यह है कि एक्स स्क्वायर का दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक है एक्स दूसरा है माइनस एक्स। लेकिन अगर हम ये सिंबल खाली यूज करें तो दोनों स्क्वायर रूट में से वही स्क्वायर रूट आंसर आएगा जो कि नॉन नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर का दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक होता है एक्स दूसरा होता है माइनस एक्स, लेकिन इसका आंसर इन दोनों में से वही आएगा जो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंबल से यूज किया गया है। और आपको देखने से लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अरे नहीं भाई, एक्स एक वेरिएबल है, एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स की जगह मैं -5 डाल सकता हूँ, -100 डाल सकता हूँ। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? एक्स एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव। ओके, आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। Yes, Yes. sir. ओके, Yes, so let's move on. You can take the screenshot and let's move on. हाँ, आप इसको एक काम करो, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट, एक हेडिंग देके अपना नोट कॉपी में एक हेडिंग देके स्क्वायर रूट वहाँ पर इसको लिख सकते हो, ये जो पोर्शन को। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, 1 सेकेंड, यस, टेक इट, डन। सर क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, क्लियर आ रहा है, चलो ले जाओ, वीडियो देख लोगे। टेक इट। Yes, sir. आ रहा है. टेक इट भाई, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें कोर्स भी आगे बढ़ाना है। टेक इट। भाई Done? done, sir. ओके, टेक इट, डन। ओके, No, sir. okay. Now let's talk about a very important thing, which is introduction to complex number. And before we move on to discuss
इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अभी तक जो रियल नंबर था उसमें कमी क्या आ गया, क्या रियल नंबर में प्रॉब्लम हुआ कि हमें रियल नंबर के आगे भी जाना पड़ रहा है। रियल नंबर हमें अभी तो 10 तक रियल नंबर सब पता थे। म्यूट करो रे। अभी 11th में हम अभी तक ट्रिगोनोमेट्री में भी रियल नंबर के साथ सब काम चला लिए। तो ये रियल नंबर इनफ कहाँ पर नहीं होगा कि हमें रियल नंबर को छोड़ के और एक भी नंबर सिस्टम भी देखना पड़ रहा है, वो देखते हैं बेटे। पहले उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटे कि नंबर सिस्टम कैसे डिवेलप किया जाता है। देखो बेटे, शुरुआत में इंसान होल नंबर को लेके काम कर रहा था। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इसको लेके काम कर रहा था। और इसको लेके क्यों काम कर रहा था? चीज़ों को काउंट करने के लिए कि अगर कुछ नहीं है तो 0 नंबर ऑफ चीज़ें, अगर एक काव है तो 1 नंबर ऑफ काउज इज 1, 2 काव है नंबर ऑफ काउज इज 2, नंबर ऑफ काउज इज 3। लेकिन जब धीरे धीरे इंसान आगे एडवांस किया मैथमेटिक्स में, उसने देखा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें अगर 1 ऐड करूंगा मुझे 0 मिलेगा। तो ऐसा तो कोई भी होल नंबर नहीं, यू गॉट माई पॉइंट, ऐसा तो कोई भी होल नंबर नहीं है जिसमें 1 ऐड करने से 0 मिलता है, कोई भी होल नंबर नहीं है। हाँ, तो उसके दिमाग में आइडिया आया, तो एक काम करते हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसने नेगेटिव इंटीजर इंट्रोड्यूस किया, -1, -2, -3, तो हमें पूरा सारे इंटीजर मिल गए। यू गॉट माई पॉइंट राइट? Yes, sir. ओके, यस सर। धीरे धीरे फिर इंसान देखा कि ऐसा कौन सा नंबर है 2x + 3 = 0 आएगा। ऐसा कौन सा x का वैल्यू होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड कर देते हैं तो 0 मिलता है। तो देखा ऐसा तो कोई भी इंटीजर यहाँ पर नहीं डाल सकते जिसको 2 में मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड करो 0 मिलता है। तो उसने देखा कि चलो एक नंबर इन्वेंट करते हैं, 2x = -3, x = -3/2, ऐसे करके उसने शुरू किया रैशनल नंबर। यू गॉट माई पॉइंट राइट? रैशनल नंबर। यस सर। फिर इंसान ने देखा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 आता है। वेल, कोई भी रैशनल नंबर का स्क्वायर कभी 2 नहीं आएगा। तो उसने इन्वेंट किया उसके बाद इरेशनल नंबर राइट, +√2 -√2 ये गए। अब सारे रैशनल नंबर एंड सारे इरेशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर बोल देते हैं। लेकिन अब देखते हैं, स्टोरी आगे बढ़ाते हैं, आगे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ। तो रियल नंबर तक अभी हम सीमित है राइट? ओके, let's have a equation. Let's have a quadratic equation. x² + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम ये सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर +1 = 0 होता है। वेल, देखने से उसे ऐसा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, 1 को राइट में ले जाते हैं तो और अच्छा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। x² + 1 = 0 इज द सेम एज x² = -1। वेल, यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, बिकॉज वी नो दैट दुनिया में कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या फिर पॉजिटिव निकलता है। 0 का स्क्वायर 0, और बाकी तुम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लो उसका स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव रियल नंबर भी लो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव, हर रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर x ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 आ रहा है? तो इससे पता चला कि x इज नॉट ए रियल नंबर हियर, x इज नॉट ए रियल नंबर हियर। जाहिर सी बात है, वी हैव आवरसेल्व्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसका 2 रूट आएंगे, मतलब यहाँ पर x का 2 वैल्यू आएंगे, जिनको यहाँ पर पुट करोगे उसका स्क्वायर +1 = 0 आएंगे। और पता चला कि ऐसा दुनिया में कोई भी रियल नंबर नहीं जिसको x के जगह पर डाल दें उसका स्क्वायर +1 = 0 आ गया। तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। धीरे धीरे करके आगे और एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, x² + x + 1 = 0. We have ourselves a quadratic equation. Now, what is a here? A is the coefficient of x² which is 1, b is the coefficient of x which is 1,
c is the coefficient, c is the constant of in the quadratic equation, which is 1. Well, since this is a quadratic equation, every quadratic equation, like promised, every quadratic equation has two roots. Okay, the two roots can be equal to each other also. That is a separate case when discriminant is equal to 0. You have already learned about in high school. Well, we'll talk about that when we will discuss the quadratic equation part separately. So this is a quadratic equation, and in order to find the roots of this quadratic equation or the solutions of this quadratic equation, we use the formula x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a, where this thing b square minus 4ac is denoted by capital letter D, called discriminant. And why it is called discriminant, I will tell you when I will teach you quadratic part of the complex number, not now. For the time being, you should satisfy yourself that this thing is called discriminant, and why it is called discriminant I will tell you later. So this is the discriminant. Now let's put the values. Let's plug in the values of a, b, c here. B is what? B is 1. So minus 1 plus or minus root over of b square is 1 ka square, 1. minus 4 za 1 za minus 1 4, divided by 2 za 1, 2, and finally we have ourselves x is equal to minus 1 plus or minus root over of minus 3 by 2. minus 3. So as promised, we have ourselves two roots. One of them is minus 1 plus root over of minus 3 by 2, and the other one is minus 1 minus root over of minus 3 by 2. Well, the strange thing is this number is a very strange number, because I think we can prove it that this number is not a real number at all. So let's try to prove it. चलो मैं ये जो नंबर है इसको मैं सेपरेटली लिखता हूँ. सपोज मैं ये नंबर को वो नाम y देता हूँ. सपोज दिस नंबर इज इक्वल टू y, माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू y, वट एवर दिस नंबर इज. देखते हैं. अब अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं y स्क्वायर, तो रूट ओवर हट जाएगा स्क्वायरिंग करने से, तो क्या हो जाएगा आंसर? माइनस 3. लेकिन बात यह है कि कौन सा ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा? कौन सा ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर माइनस 3 आएगा? इम्पॉसिबल. मतलब दिस y इज नॉट ए रियल नंबर एट ऑल. मतलब ये एक रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये अगर रियल नंबर होता तो इसका स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता. दिस इज नॉट ए रियल नंबर. In fact, I would say square roots of negative numbers are not real numbers. For example, square root of minus 1. Well, as we know that every number has two square roots, so square roots of minus 1 will be root over of minus 1 and minus root over of minus 1. क्योंकि जब इसका भी स्क्वायर करोगे तो माइनस बाहर जो बैठा माइनस बैठा है, जो बाहर जो बंदा माइनस बैठा है उसका स्क्वायर होके माइनस गायब हो जाता है, माइनस का स्क्वायर गायब हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है. राइट? यू गॉट इट राइट? Yes, sir. Square roots of minus 8 is equal to root over of minus 8 and minus root over of minus 8. दोनों का स्क्वायर माइनस 8 आएगा. Well, these numbers are not real. These numbers are not real. Not real numbers. They are not real numbers. क्योंकि अगर ये रियल नंबर है तो इनका स्क्वायर कभी माइनस 1 या फिर माइनस 8 नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता. तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखे कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स. आई होप यू गॉट इट. हेलो. Yes, sir.
अरे Yes, sir. Yes, sir. आर यू गेटिंग टायर्ड और व्हाट? अरे आर यू गेटिंग No, बोर्ड? sir. Sir, हाँ यस. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir, sir. we can say -1 plus root minus 3/2 equals, I mean, is named as omega, no? यस यस, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, वो भी सिलेबस में आपका नहीं है. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, एंट्रेंस में पढ़ाया जाएगा. ओके, टेक द Yes, स्क्रीनशॉट, sir. टेक इट डन. Done, sir. ओके, टेक इट डन. ओके ओके, तो जिससे कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि रियल नंबर कहाँ पर सफिशिएंट हमें नहीं हो रहा है, राइट. एक जगह आ गया जहाँ पर रियल नंबर का जो राज है वो काम नहीं आ रहा, रियल नंबर का सेट काम नहीं आ रहा है, मतलब उसके आगे हमें भी बढ़ना है, राइट. तो उसके लिए हम एक न्यू नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. एक्चुअली न्यू नहीं है, वो उसका ही एक एक्सटेंशन है जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाया जाएगा. लेकिन अभी फिलहाल हम एक न्यू नंबर के बारे में जानेंगे. ओके, अ न्यू नंबर. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ए न्यू नंबर. इससे पहले भी आप बहुत सारे न्यू नंबर के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि पाई, ये एक अजीब सा नंबर है. पाई, √2, √3 इरेशनल नंबर, अजीब से नंबर होते हैं. इनका ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं, कहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं. ये भी एक अजीब सा चीज़ होता है. ऐसा नहीं कि ये पहली बार अजीब सा चीज़ देख रहे हो, मैथमेटिक्स में हमेशा अजीब सा चीज़ आते जाते हैं. ओके, तो ऐसे ही एक नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे पहले, एंड दैट नंबर इज आई. इस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट. अब बड़े बाद में बताऊंगा, इनफैक्ट मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि इसको इमेजिनरी यूनिट क्या सोच के मैथमेटिशियन ने नाम दिए थे, कोई भी नहीं बता पाएगा. अभी के कंटेम्प्रेरी मैथमेटिशियन भी जान नहीं पाते कि इसको उसने इमेजिनरी नाम क्यों दिया. शायद इसीलिए दिया कि उनके पास और कोई नाम नहीं बचा था. रियल नंबर गया और रियल नंबर के बाद और क्या एक नाम देंगे, चलो इमेजिनरी दे देते हैं, पर कोई वजह नहीं है. दिस नंबर्स आर एज मच रियल एज रियल नंबर्स. ये नंबर्स को हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन आम इंसान नहीं जान पाता है. हम जब प्लेन में उड़ते हैं, जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं, जब कैलकुलस करते हैं, जब वगैरह वगैरह सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है, वो दुनिया जिससे चलता है वो मैथमेटिक्स से चलता है, और ये सारे वहाँ पर काम आते हैं. लेकिन इनका तो इमेजिनरी नाम दे के ये मत सोच लेना कि इमेजिनरी चीज़ कोई सर पढ़ाने जा रहे हैं. दीज आर एज मच रियल एज रियल नंबर्स. बस ये एक नंबर है, राइट. ओके, नाउ व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू, रिमेंबर, आई तो मैंने बस एक नंबर का सिंबल बोल दिया, जैसे कि पाई एक सिंबल है. पाई क्या है? सिंबल है. पाई को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम पाई का मतलब समझते हैं, इसीलिए आई तो एक सिंबल हो गया. लेकिन आई नंबर है क्या? आई इज इक्वल टू Root minus 1. स्क्वायर रूट ऑफ -1. यू रिमेंबर, दिस नंबर को आपको पूरा याद रखना है. आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. You got it right? I is equal to square root of -1. This is a number. Just this is a number. So let's play some games with this number. Hello, are you ready? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Well, one problem is solved. One problem is solved. One problem is solved. What is that problem? Now we found the square roots of -1. Well, if x is some number whose square is equal to -1, then what is x? X is a square root of -1, right? X is square root of -1. Well, -1 will have two square roots. -1 will have two square roots. X will have two square roots. Sorry, -1 by two square roots, plus or minus root over of -1, right? One of them is root over of -1. The other one is minus root over of -1. दोनों का स्क्वायर क्या होता है? -1 आता है. और हम ऑलरेडी जान Yes, चुके sir. हैं कि एक को हम आई पकड़ते हैं, एक को हम आई बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस आई बोलेंगे, राइट? ये आई है और उससे आगे माइनस लगा है, माइनस आई. तो -1 का दोनों स्क्वायर रूट क्या है बेटे? आई माइनस आई. यू गॉट इट राइट? हेलो. द टू स्क्वायर रूट्स Yes, ऑफ sir. द स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 आर आई एंड Yes, -1. sir. are I and -I. Okay, so let's move on. Take the screenshot and let's move on.
Done? Done, sir. Yes, sir. Okay. Done, sir. Guys, this is completely new to you, so pay attention, pay very close attention. और आप मुझे बताओगे, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके एक्सप्रेशन नहीं देख पाते हैं, आप में से कौन समझता है नहीं समझता, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो बार बार बीच बीच में मैं रोक कर तो नाम नहीं ले सकता, तो फिर मतलब ठीक नहीं रहता, ऐसा मैथ नहीं पढ़ाया जाता दुनिया में, इसलिए इंडिया में होता है सिर्फ मतलब बच्चों को मतलब पूरा मतलब जैसे बोलता है ना हिंदी में बड़ों को पानी को भिड़ला बड़े उड़िया को बड़ों को पानी लग भिड़ला बड़े, एमती मैथ पढ़ा जाएंगे। यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, रिमेंबर दिस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स प्ले सम गेम्स विथ आई, राइट? ओके, वेल what is I to the power 2 or what is I square? Well, let's find out. We know that minus I is equal to root over of minus 1. Now if I square both sides, then I square will be equal to what? Minus 1, right? minus See, I square is equal to minus 1. Hello, got it? I square is equal to minus 1. yes Yes. Yes, sir. Okay, now please tell me what is the value of I to the power 0. Well, listen, 0 to the power 0 is undefined, remember 0 to the power 0 is undefined. 0 का पावर अगर 0 ले जाते हैं कोई रियल नंबर नहीं मिलता है, दैट इज अनडिफाइंड। बट 0 के अलावा कोई भी नंबर रियल हो इमेजिनरी हो जो भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 लोगे आंसर मिलेगा 1। तो I to the power 0 is equal to 1. I to the power 1 is equal to what? I Yes, to the sir. power 2 is equal to what? Minus 1. You check it out. minus 1 Well, I cube will be equal to minus I I square into I, right? I cube will be equal to I square into I. But I square is minus 1. Minus 1 Minus into I is minus I. You got it? yes sir Okay. Yes, sir. Now, Yes, sir. let's find I to the power 4. Well, I to the power 4 is equal to I square into I square. Very easy to say, or you can say I cube into I. It's okay, whatever. I cube into I also you can do it. I square is I. minus 1 into I square is minus 1. Minus 1 into minus 1 is plus 1. Well, what I found here, that I to the power 0 and I to the power 4 are equal. Okay, let's move on. Let's find I to the power 5. I to the power 5 is equal to I to the power 4 into I. Now I to the power 4 is equal to 1. 1 into I is equal to I. I. Well, मैं ये भी देख रहा हूँ कि I to the power 1 and I to the power 5 भी इक्वल आ रहे हैं, दोनों I। चलो I to the power 6 निकाल के देखते हैं। I to the power 6 होगा I to the power 5 into I. I to the power 5 I आता है into I, but I into I square which is equal to minus 1. Well, I square and I to the power 6 का वैल्यू भी सेम आ रहा है। What is I to the power 7? I to the power 6 into I. I to the power 6 is minus 1 into I is minus 1. Well, Minus I. Yes, sir. I to the power 3 and I to the power 7 भी बराबर आ रहे हैं। तो मतलब एक गेम चल रहा है, राइट? मतलब I का पावर 0 से लेके 3 तक 1i माइनस वन माइनस आई होके रहा। फिर जब 4 से 7 तक फिर से रिपीट हुआ 1i माइनस वन माइनस आई। देख लो बेटे, i का पावर 0 से लेके 3 तक क्या था? 1i माइनस वन माइनस आई। फिर i का पावर 4 से 7 तक रिपीट हुआ 1i माइनस वन माइनस आई। और आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसके आगे भी वही चलेगा गाड़ी। i टू दी पावर 8 इज इक्वल टू आपका 1 आएगा। i टू दी पावर 9 इज इक्वल टू आपका i आएगा। i टू दी पावर 10 इज इक्वल टू आपका माइनस 1 आएगा। i टू दी पावर 11 इज इक्वल टू माइनस आई। मतलब यही 4 नंबर रिपीट होते जाएंगे, आप i का पावर बढ़ाते जाओ। यू गॉट माई पॉइंट? दिस इज अ गेम, राइट? दिस इज अ गेम, वेरी इंपॉर्टेंट गेम, Yes, sir. वेरी इंटरेस्टिंग गेम। कि i की वैल्यू ऑफ i to the power m repeats after an interval of
आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 ऑफ m। ये जो m जो पावर है उसका पावर मतलब 4 इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होता रहता है। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि आप इमेजिन करो, दिखाता हूँ बेटे मैं आपको। i⁻3 राइट, उसका पावर 3 है, 3 में 4 बढ़ा दो मतलब 4 आगे ले जाओ, i⁻7 इक्वल हो गए दोनों, चेक कर लो। हेलो, Yes, sir. i⁻7 अभी पावर 7 में और एक 4 बढ़ा दो, i⁻11 उसका वैल्यू 7। यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मैं यही लिखा, वैल्यू ऑफ i⁻m रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 ऑफ m। ओके ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Done, sir. ओके बेटा, गेम कंटिन्यूज। इसी आई को लेके हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे आई को लेके। आई का प्रॉपर्टी क्या है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। पहला एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। i⁻4m इज इक्वल टू 1 वेयर m इज एन इंटीजर। अगर मैं इसको वर्ड में ट्रांसलेट करूं, i⁻ मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। अगर आप i का पावर कोई भी 4 का मल्टीपल रखते हो तो इसका आंसर 1 आता है। कुछ एग्जाम्पल पहले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रूव भी कर देंगे। एग्जाम्पल के तो बताता हूँ बेटा। i⁻0, यू टेल मी, यहाँ पर जो i का पावर 0 है, क्या ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं? 0 4 का मल्टीपल होता है, Yes, right? sir. Yes, sir. Yes, sir. i⁻4 बेटे 4 तो 4 का मल्टीपल होता है। i⁻4 -4 भी तो 4 का मल्टीपल होता है। i⁻8 8 भी 4 का मल्टीपल है, -8 भी 4 का मल्टीपल है। i⁻12 -12 ये दोनों 4 का मल्टीपल है। ये सब का वैल्यू क्या आएगा लास्ट को बेटे? हमेशा 1। क्या आएगा बेटे? 1। तो अगर आपको कोई पूछ लिया कि बेटे बता i⁻96 क्या होगा, तो 96 क्या होता है? 4 का मल्टीपल, राइट? हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इसका वैल्यू क्या आएगा? That's one. 1। तो चलो प्रूव करते हैं। बेटे i⁻4m हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि x⁻a उसका पावर अगर b लेते हैं, मतलब पहले x का पावर a फिर उसका पावर अगर b लिया जाता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x⁻ab, राइट? ab को मल्टीप्लाई करके x का पावर ले जाओ, एक ही बात है। तो क्या मैं i⁻4m को i⁻4 फिर उसका पावर m लिख सकता हूँ, Yes, sir. राइट? Yes, sir. Okay. And what is i⁻4? i⁻4 is equal to 1, right? Then 1⁻m is equal to what? 1. 1. One. So it is proven that i का पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। यू गॉट इट? हेलो, व्हाट अबाउट द रेस्ट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। देन वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि बेटे याद रखो हमेशा पहले तो ये नंबर आपको याद रखना है कि i² इज इक्वल टू -1, i³ इज इक्वल टू -i⁻4 इज इक्वल टू 1। ये 3 नंबर तो आपको दिलो दिमाग में आपका हमेशा रहना चाहिए। अगर ये तीनों नंबर कभी अगर भूल जाते हो तो डिराइव तो कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो तीनों नंबर को याद रखना है आपको, राइट? i² -1, i³ -i, i⁻4 1। और एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, i⁻4m + 1 इज इक्वल टू i। बताता हूँ कैसे बेटे। i⁻4m + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? i⁻4m × i⁻1, क्योंकि पता है ना x⁻m × x⁻n इज इक्वल x⁻m + n।
Hello, you got it? Yes, sir. Yes, sir. And what is I to the power 4m? It is 1, right? 1 into I is I. I to the power 4m plus 2, some multiple of 4 plus 2 is equal to -1. देखो कैसे होता है. I to the power 4m plus 2 को हम क्या लिख सकते हैं? I to the power 4m into I square, राइट? चेक कर लो. I to the power 4m 1 होता है, I square -1 होता है, -1 into 1 -1. आज शायद आपको पता चल चुका होगा I to the power 4m plus 3 क्या होने वाला है? Minus I. -I, राइट? Minus I. हेलो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. नेक्स्ट थ्योरम इज I to the I plus I square plus I cube plus I to the power 4 is equal to 0. I plus I square plus I cube plus I to the power 4 is equal to 0. Let's check it out. I plus, what is I square? -1, right? Minus I. What is I Minus cube? I. -I, right? Minus I. What is I to the power 4? 1. 1, right? 1. 1. I minus I One. cancel. 1 minus 1 cancel. Answer is 0. You got it? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. थ्योरम नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. थ्योरम नंबर 5 बोलता है कि I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3 is equal to 0. पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद प्रूफ करेंगे. Yes, sir. पहले एग्जाम्पल, उसके बाद प्रूफ करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा होता है धड़ाक से फॉर्मूला को समझ जाने. पहले एग्जाम्पल देता हूँ. पहले इसको समझ लो बेटे कि I का पावर सपोज कुछ नंबर n है, फिर प्लस I का पावर वो नंबर +1 है, फिर प्लस I का पावर उस नंबर +2, फिर प्लस I का नंबर +3 इज इक्वल टू 0 आता है. मतलब पावर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, पावर देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, I टू दी पावर सपोज बोला जाए I टू दी पावर 95 प्लस I टू दी पावर 96 प्लस I टू दी पावर 97 प्लस I टू दी पावर 98. कितना होगा बेटे? 0 होगा. 0. मेरा बात समझे कि I का जो पावर Yes, है sir. वो अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो 4 उनको ऐड करने से आंसर 0 आता है. 4 ऐड करने से. यू गॉट माई पॉइंट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ. I टू दी पावर 103 प्लस I टू दी पावर 104 प्लस I टू दी पावर 105 प्लस I टू दी पावर 106. 4 ऐड कर रहे हैं, 0. 0. 0. Then let's try to prove it. Well, I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3. Well, this is I to the power n plus, guys you tell me, क्या मैं I to the power n plus 1 को I to the power n into I लिख सकता हूँ? Can I? Yes, sir. Yes, Can I? sir. Because we know that x to the power m into x to the power n is equal to x to the power m plus n. क्या मैं I to the power n plus 2 को I to the power n into I पर 2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्या मैं I to the power n plus 3 को I to the power n into I पर 3 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. और बेटे I to the power सारे टर्म में से I to the power n कॉमन जा सकता है. Yes, sir. यहाँ पर रहेगा 1 प्लस यहाँ पर रहेगा I प्लस यहाँ पर रहेगा I स्क्वायर प्लस यहाँ पर रहेगा I क्यूब. Well, this is I to the power n into 1 plus I plus, what is I square? Minus 1. Minus I. What is I Minus cube? Minus I. Minus I. Well, I minus I cancel, 1 minus I minus 1 cancel. I to the power n into 0 is equal to 0. You got it? Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें. Yes, sir. Screenshot. No, sir. Sir, whenever we see this type of question, we can just directly write 0, or we have to write this whole thing. No. Like, You have to directly write 0. You have to directly write 0. Theorem Sir, जो है
यस, थ्योरम वंस प्रूव हो गया तो थ्योरम को अब डायरेक्ट यूज़ करना है, थ्योरम को प्रूव नहीं करना है एग्जाम में। थ्योरम प्रूफ ज़्यादा तक नहीं आता है, अगर कहीं आ गया तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट डाउन। Done, sir. Sir, beside we have to write that we are using this formula I to the power n plus I to the power. Yes, you should, actually you should, but if you do not write it then I will forgive you, I will give you the marks, don't worry about it. लेकिन but you should, बोर्ड में तो बहुत स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। Done, sir. ओके, लेट मी इरेज इट। Yes, sir. ओके, बस एक लास्ट, बेटे मुझे आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो, क्योंकि आप आते आते सब लेट कर दिए और 11:32 हो गया। ए सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिया हूँ तो आपका आधा रह जाएगा, मुझे फिर याद नहीं रहेगा किसका कितना पढ़ाया हूँ। तो और 5 to 10 मिनट्स मुझे दे सकते हो प्लीज़। 42 में जाओ और जल्दी जल्दी Yes, sir. आज थोड़ा ये नेक्स्ट क्लास हड़बड़ी में कर दो, क्योंकि उसके बाद तो 1 घंटा का ब्रेक है, राइट? चलाते हैं थोड़ा प्लीज़। Yes, sir. अरे बाकी हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थ्योरम। Yes, sir. बेटा थ्योरम नंबर से आया तो प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं इसका पहले मुझे याद नहीं जो भी लिखा था, जो भी है तो आप वो उससे कंफ्यूजन मत हो जाना, जो भी नंबर है आप सीरियली लिख देना। चलो, जो भी नंबर है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नेक्स्ट थ्योरम, आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे। जैसे कि कोई आपको पूछा आई टू द पावर 100 प्लस आई टू द पावर 102 क्या है बेटा? देखो, आप देखोगे कि आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर दैट नंबर n प्लस 2, मतलब पावर में अगर 2 ऐड कर दो तो उन दोनों को ऐड करने से 0 मिलता है। आई का पावर 100, फिर 100 में 2 ऐड करें तो 102, यहाँ पर आई का पावर 102 है तो इसका आंसर 0 आएगा। यू गॉट इट? Yes, sir. हेलो, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. इसका आंसर क्या आएगा? बेटा देखो, इन दोनों का आंसर क्या होगा? Zero. 0। Zero, sir. इन दोनों का आंसर क्या होगा? Zero, 0, zero. राइट? आई टू Zero. यहाँ पर 14, इसका पावर 14 प्लस 2, 18, इसका पावर 18 प्लस 2, तो 0 क्या हो गया बेटा? Yes, sir. Zero. 0 प्लस Zero. Zero. हाँ, गॉट इट? Zero. Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो लेट्स प्रूव इट। आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू आई टू द पावर n। गाइस, आई टू द पावर n प्लस 2 को हम आई टू द पावर n इंटू आई टू 2 लिख सकते हैं। दोनों में से आई टू द पावर n कॉमन ले जाते हैं तो 1 प्लस आई स्क्वायर, राइट? Yes. एंड व्हाट इज One आई minus स्क्वायर? one. -1, राइट? Minus 1. 1 minus 1 0, so I put n into 0 is equal to what? 0. Got it? Yes, sir. Do you understand the game? Yes, sir. Yes, sir. Okay, take the screenshot very quickly, take the screenshot. Done, sir. Okay, done. Okay, okay, बस ये लास्ट Yes, sir. बस ये लास्ट बचा। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8, आई टू द पावर 4m प्लस r इज इक्वल टू आई टू द पावर r where m is some integer। देखते हैं क्या है चीज। फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट 4m इज व्हाट? 4m इज सम मल्टीपल ऑफ 4। 4m क्या होता है? 4 का कोई एक मल्टीपल। तो i का पावर अगर ऐसा फॉर्म में है 4 का कोई मल्टीपल प्लस r, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट इज इक्वल टू आई टू द पावर r। प्रूफ बाद में करेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आई टू द पावर 98 कोई अगर आपको पूछता है तो दिस इज इक्वल टू आई टू द पावर 96 प्लस 2। Yes, sir. आप क्या करो, सिंपली 98 को 4 से डिवाइड करो। 98 को 4 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाता है 4 इंटू 24. 24 Yes. प्लस 2। यू सी फॉर योर सेल्फ, 24 जा 496, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यही फॉर्म में आ गया, यही फॉर्म में आ गया, चेक करो, यही फॉर्म में आ Yes, गया। sir. आई टू द पावर 4m प्लस r, तो इसका आंसर क्या होगा? आई टू द पावर r, और r क्या यहाँ पर 2 है, राइट? I square. माइनस Minus 1. यू गॉट इट? Yes, sir. आई टू द Yes, पावर sir. आई टू द पावर 9 कोई अगर पूछ लिया तो आई टू द पावर 9 इज इक्वल टू आई टू द पावर 8 I to the प्लस power 8 1। plus 1.
स्क्वायर 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ आई टू द पावर आर, और आर यहाँ पर 1 है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ आई टू द पावर 8 इज व्हाट 4 इंटू 2 प्लस 1। तो बेटे ये इसी फॉर्म में आ गया आई टू द पावर 4m प्लस आर, तो आंसर होगा आई टू द पावर आर, और आर यहाँ पर क्या है बेटे 1 है, राइट। Yes, sir. तो ऐसे करके मैं आई का बड़ा बड़ा पावर निकाल सकता हूँ ना, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा पावर। तो मुझे दे रखा है आई टू द पावर 102 या फिर 103, मैं क्या करूँगा 103 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 ज़ा 2500, 3 आता है 25 रिमाइंडर, into 4 plus 3. तो आई इज इक्वल टू 4 इंटू 25 -i. प्लस 3। यू गॉट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो आ गया आई टू द पावर 4m प्लस आर फॉर्म में, तो आर क्या है 3, तो आंसर क्या होगा आई टू Yes, द sir, पावर I2. आर, मतलब आई टू द पावर 3 Minus I. व्हिच इज इक्वल टू Minus व्हाट I. माइनस है। तो ऐसे करके आप Minus I. यस ऐसे करके सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अब अगर कोई आपको आई टू द पावर 104 पूछ दिया तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं 1 बता दूंगा। ऐसा क्यों? बिकॉज 104 इज ए मल्टीपल Yes, ऑफ 4, 104 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, राइट। Yes, sir. 4m. Yes, sir. आई टू द पावर Yes. 4m इज इक्वल टू 1, राइट, याद है ना, आई टू 4m इज इक्वल टू 1। Yes, sir. ओके Yes, sir. बस ये लास्ट एक बचा, थ्योरम नंबर 8। बेटा 1 बाई आई इज इक्वल टू माइनस आई, रिमेंबर 1 बाई आई, 1 में अगर आई डिवाइड करते हैं आंसर आता है माइनस आई। इसका प्रूफ कर देता हूँ। बेटा देखो लिखा है हमें हमें क्या दिया है 1 बाई आई दिया है, क्या दिया है 1 बाई आई दिया है। अच्छा अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में एक नॉन जीरो नंबर आई मल्टीप्लाई करूँ तो कोई प्रॉब्लम है? नॉन जीरो नंबर है, जीरो मल्टीप्लाई करने से अनडिफाइंड हो जाता है ऊपर नीचे, नॉन जीरो नंबर आई 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 कट जाएगा, वही 1 बाई वाई रहेगा, राइट। ऊपर 1 Yes, sir. इंटू आई Yes, इज right. इक्वल टू Yes, आई, sir. नीचे आई इंटू आई क्या होता है आई स्क्वायर कितना होता है -1, आई बाई -1 इज इक्वल टू व्हाट माइनस आई। यू गॉट इट राइट? Yes, sir. ओके बस ये लास्ट। कोई अगर आपको पूछा व्हाट इज आई टू द पावर -98, वेल आई टू द पावर -98 इज इक्वल टू 1 बाई आई टू द पावर 98 which is equal to 1 by I to the power 96 plus 2, where 96 is a multiple of 4, right? I to the power 4m plus r फॉर्म में, तो आंसर क्या होगा I to the power r। तो 1 by I square is -1, 1 by -1 is -1। अगर आपको कोई I to the power -99 पूछे तो आंसर होगा 1 by I to the power 99। बेटा 99 को 4 से डिवाइड करो तो ये 96 प्लस 2, राइट। हेलो गॉट इट? 4 जा 24 प्लस सॉरी प्लस 3, सर 96 प्लस 3 सर 96 प्लस 3, गॉट इट। तो क्या ये आपका आई टू द पावर 4m प्लस आर फॉर्म में आ गया? 96 इज 4m, राइट, 4 का मल्टीपल इज इक्वल आई टू पावर आर आता है। तो ये आएगा क्या आई टू द पावर आर क्या है 3, 1 और by I- I is to 3. और आई 1 क्यूब by क्या है? minus I. आई क्यूब क्या है माइनस आई। बेटे 1 by minus i is also equal to 1 by minus i is also equal to minus of 1 by i, right? Right? It's correct. Minus Yes, I sir. into Minus- minus I. And what is and what is 1 by i? Minus i, right? 1 by i is minus, अभी प्रूव Yes. किए थे minus into minus i is equal to plus i। I. You got it? So this is how Yes, sir. Yes, sir. you will do it। बस और 1 मिनट में ही बस हो जाएगा, बस 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, वन एग्जैक्ट 1 मिनट एन ऑल्टरनेट प्रूफ, एग्जैक्ट 1 मिनट ऑल्टरनेट प्रूफ। बेटे देखो हमें पता है आई इज इक्वल टू √(-1), अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो आई स्क्वायर क्या हो जाता है -1 हो जाता है ऑब्वियसली, राइट, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगर फिर से मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँ, लेफ्ट में स्क्वायरिंग क्या है, इसका स्क्वायर क्या है, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, दोनों का स्क्वायर भी सेम होगा, तो ये हो जाता है आई टू द पावर 4 और -1 का स्क्वायर इज 1, राइट। यू गॉट इट? हेलो Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा अगर मैं दोनों तरफ एक पावर m ले जाता हूँ
दोनों तरफ एक पावर एम ले जाता हूँ, इसका पावर लेफ्ट का पावर एम ले जाता हूँ, राइट का ही पावर एम ले जाता हूँ। आई टू द पावर 4 टू द पावर एम क्या होता है? आई टू द 4m, राइट, विच विल बी इक्वल टू 1 पावर m क्या होता है? 1 को अगर m टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे वही 1 मिलेगा। यू गॉट इट राइट? देन Yes, sir. लास्ट थिंग इज, अच्छा बेटे अगर ये दोनों नंबर सेम है तो दोनों साइड में एक सेम नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, आई टू द पावर r। लेफ्ट में भी आई टू द पावर r मल्टीप्लाई किया, राइट में भी आई टू द पावर r मल्टीप्लाई किया। कोई प्रॉब्लम है? लेफ्ट राइट दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई किया नो नो सर नो। तो लेफ्ट में क्या हो गया? आई टू द पावर 4m प्लस r, राइट, आई टू द x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, और राइट में क्या होगा? 1 इंटू x टू द पावर n, राइट। दिस इज द अल्टरनेट प्रूफ। Yes, sir. ओके, सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू। पूरा ए का जितना ही आपका उतना ही खर्च हो गया। अच्छा बेटा और ए का तो और एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाया गया था? हेलो साई, इतना ही तो ए का पढ़ाया गया था? Yes, sir. ओके ओके यस सर। ओके।